Myself Dr. Pushali Kinikar, Assistant Professor from Shivaji Science College, Nagpur. I welcome you all for International Symposium on Empower Women, Elevate the World. Today we have with us eminent speaker Dr. Shilpi Srivastava ma'am. Dr. Shilpi Srivastava ma'am, an esteemed academician and current head of the Department of Chemistry at Kalinga University, Naya, Raipur. She boasts extensive teaching experience spanning over 23 years. Throughout her career, she has also assumed several notable administrative roles within the realm of higher education. The individual possesses a Doctor of Philosophy degree in chemistry, a Master Philosophy degree in chemistry, and Master of Science in degree in applied sciences. Dr. Srivastava has authored a substantial body of scholarly articles, delivered invited lectures, and contributed as an external examiner for PhD Viva examination at multiple government universities. Additionally, she has held the position of Examination Center Superintendent at Kalinga University. Dr. Srivastava has been honored with esteemed accolades and actively participates in multitude of conferences and workshops. The research conducted by the individual in question makes a significant contribution towards the advancement of sustainability and improved well-being within the domain of chemistry and environment science. She has published several research papers at national and international journals and book chapters, books and patents. Thank you very much ma'am to you to accept our invitation on a very short period. Please deliver your lecture on above topic. Please ma'am. Good morning, everyone. I, Dr. Shilpi Srivastava, Professor and Head, Department of Chemistry, Kalinga University, Naya, Raipur. Now, first, I would like to give wishes to Happy Women's Day, all of you. And now, today, I am presenting here some views on women empowerment. Women empowerment, it means हिंदी में जिसको हम कहते हैं महिला सशक्तिकरण. महिला सशक्तिकरण भौतिक या आध्यात्मिक, शारीरिक या मानसिक सभी स्तर पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए उन्हें सशक्त बनाने की प्रक्रिया है. सशक्त बनाने की प्रक्रिया के अंतर्गत अगर हम महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं करेंगे और उन्हें सशक्तिकरण की धारा से नहीं जोड़ेंगे तो देश का विकास संभव नहीं है. फर्स्ट, मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगी कि वुमेन एम्पावरमेंट है क्या. एक्चुअली ये जो मैंने बताया ये तो इसकी परिभाषा है. अगर हम इंग्लिश में लेते हैं या हिंदी में, दोनों ही लैंग्वेज में हम इसको वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण. सो वुमेन एम्पावरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एम्पावरिंग द वुमेन. इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि इसके अंतर्गत हम महिलाओं को समाज और देश के लिए महिलाओं को सशक्त बनाते हैं. नारी सशक्त होगी तभी हमारे देश का और समाज का भविष्य उज्जवल होगा. एक सशक्त नारी के कंधों पर ही वही संतुलित, स्वस्थ और विकसित समाज की नींव रख सकती है. सो वुमेन एम्पावरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एम्पावरिंग वुमेन. एम्पावरमेंट रेजेस द स्टेटस ऑफ वुमेन थ्रू एजुकेशन, अवेयरनेस, लिटरेसी एंड ट्रेनिंग. Women empowerment allow women to take life determining decisions. They may get the opportunity to redefine the gender roles, which in turn provide them more freedom to pursue desired goal. It means अगर हम महिलाओं का सशक्तिकरण करेंगे तो वो अपने डिसीजन खुद ले पाएंगी और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगी. वुमेन आर टेकन एज ए सेकेंडरी. हमेशा से ही समाज में ये रहा है कि महिलाओं का स्थान दूसरे नंबर पे. इन सोशल रोल ऑफ मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इवन बहुत सारे फिलोसोफर ने, प्लेटो, अरिस्टोल, थॉमस होब्स, जॉन लुइक, रोसियो एंड
ये बताया कि फिजिकली और मेंटली फिट टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, कि महिलाएं पॉलिटिक्स राजनीति के लिए फिट नहीं है। सो वुमेन एम्पावरमेंट इज अ सिग्निफिकेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन द डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक। अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था के हिसाब से भी देखें तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है डिसीजन लेने के लिए। महिलाओं का अपने घर में, समाज में आर्थिक दृष्टि से अगर हम इसको देखते हैं तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट अलाउ वुमन इन कंट्रोलिंग एंड गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम रिसोर्सेस, एसेट एंड इनकम। अगर हम एक परिवार की ही बात करते हैं तो उस परिवार में एक महिला जो होती है वो पूरे परिवार को चलाती है। ऐसे ही यदि हम महिलाओं को यदि राजनीति में, अभी तो समय बहुत बदल गया है, पुराने वैदिक काल में महिलाओं की जो स्थिति थी उस टाइम हम महिलाओं को यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता बसते हैं। तत्रस्तु न पूजन्ते सर्वास्त्र त्राफला क्रिया, मतलब जहां अगर नारी को सम्मान नहीं दिया जाता है वहां पे कभी भी कोई सफलता हाथ नहीं लगती है। अगर एक एजुकेशनिस्ट की दृष्टि से हम देखें तो वुमेन एम्पावरमेंट इज अ सोशल एक्शन प्रोसेस दैट प्रमोट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिटी एंड गेनिंग द कंट्रोल ओवर देयर लिव्स इन देयर कम्युनिटी एंड लार्जर सोसाइटी। अगर हम वास्तविकता में देखें कि विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है हैविंग कंट्रोल और गेनिंग फर्दर कंट्रोल, हैविंग सेज, बीइंग लिसन, being able to define and create to women's perspective, being able to influence social choices and decision affecting, मतलब एक होल सोसाइटी में महिलाओं को अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अब यहाँ पे महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने अलग अलग थ्योरी दी है। तो इस थ्योरी को, देयर आर 4 waves ऑफ फर्निश्ड movement. The first wave occurred in the 19th और early 20th century movement for women right to vote. महिला सशक्तिकरण के लिए 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में कुछ थ्योरी डेवलप की गई। सेकेंड वेव 1960 एंड 1970 मूव्ड फॉर इक्वल लीगल एंड सोशल राइट। ये कहा गया कि महिलाओं को समाज में बराबर का स्थान मिलना चाहिए। द थर्ड वेव बिगन इन 1990, refer to contribution and reaction to second wave. The fourth wave in 2012 and continue till now take about the woman empowerment. 2012 के बाद से woman empowerment पे बहुत ज्यादा वर्क हुआ है। और फोर्थ वेव ग्रेटर जेंडर इक्वलिटी, आज समाज में जो आज हम देश में देख रहे हैं कि जेंडर इक्वलिटी पे बहुत फोकस किया जा रहा है एंड इसके कुछ नॉर्म्स बनाए गए हैं। मार्जिनाइजेशन है वुमेन का, महिलाओं का समाज में स्थान और महिला और पुरुष दोनों एक समान हो, इसके लिए बहुत देश में हमारे बहुत सारे नियम और कानून बनाए गए हैं। एम्पावरमेंट का प्रोसेस जो होता है, प्रोसेस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इज फर्स्ट प्रोसेस पर्सनल लेवल। अगर हम महिलाओं को उनके व्यक्तिगत लेवल पे, इंडिविजुअल हम महिलाओं का विकास करना चाहते हैं, फीलिंग टू पर्सनल पावर, उनको हम रियलाइज कराएं कि नहीं आप में ये चीज है, आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। सेकेंड स्टेप, एम्पावरमेंट टेक प्लेस ऑन द इंटरपर्सनल लेवल एंड here a woman influence the decision making power of another woman. एक महिला दूसरी महिला को सशक्त कर सकती है उसके डिसीजन लेने के लिए। थर्ड स्टेप, emphasis the goal for social action and social change. A community development programs developed through a group efforts. अगर हम सामूहिक रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रयास करते हैं तो समाज में बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो सामूहिक रूप से महिलाओं को वर्क कार्य कर दे के और उनको कुछ इनकम जनरेट करते हैं। ये बहुत छोटे छोटे समूह बनाकर महिलाओं के द्वारा उत्पादन किया जाता है और चीजों को मार्केट में बेचा जाता है। बहुत हद तक ये महिलाओं को बहुत योगदान दिया है ये समूहों ने महिलाओं के सशक्तिकरण में। डांडीकर 1986 में उन्होंने एम्पावरमेंट को इस प्रकार से बताया, मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। इट मीन्स हमको सिर्फ महिलाओं का एजुकेशन ही नहीं, उनके इकोनॉमिक कैपेसिटी, ह्यूमन कैपेसिटी, सोशल कैपेसिटी, जेंडर इक्वालिटी एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, हमको इन सब पे कार्य करना होगा। एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक कैपेसिटी, सेल्फ एस्टीम मतलब स्व अधिकारिता एंड अवेयरनेस,
social capital, gender equality and political influence. इंडिकेटर ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, शायद हाशमी 1996 में इन्होंने एक 8 एम्पावरमेंट इंडिकेटर, 8 प्रकार के सूचक दिए जो महिला सशक्तिकरण के लिए जिम्मेदार होते हैं। मोबिलिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, एबिलिटी टू मेक स्मॉल परचेज, छोटी चीजों के लिए उनको किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े, वो मार्केट में जाके खुद से अपने परचेसिंग कर सके। इन्वॉल्वमेंट इन मेजर डिसीजन, घर परिवार के समाज के बहुत बड़े बड़े निर्णय भी वो ले सकें, मेजर डिसीजन में उनका इन्वॉल्वमेंट हो। रिलेटिव फ्रीडम एंड डोमिनेशन बाय द फैकल्टी, उनकी फ्रीडम, स्वतंत्रता रहे परिवार में, किसी भी प्रकार का उनके ऊपर बंधन या बाउंडेशन ना हो। एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस रहे, पार्टिसिपेशन इन पब्लिक प्रोटेस्ट एंड पॉलिटिकल कैंपेनिंग में भी महिलाएं बराबर से अपनी हिस्सेदारी निभाएं। फॉर्म्स ऑफ एम्पावरमेंट, अगर हम देखें तो यहाँ महिला सशक्तिकरण के लिए इसके कई प्रकार हो सकते हैं, कई प्रकार से हम महिला सशक्तिकरण कर सकते हैं। जैसे कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इंक्लूड द एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इक्वली इन एग्जिस्टिंग मार्केट। आज हम देख रहे हैं कि महिला और पुरुष दोनों एक साथ कंपनी में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, सब जगह काम कर रहे हैं, तो ये इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में आ जाता है। सेकेंड, वुमेन एम्पावरमेंट एंश्योर द पार्टिसिपेशन, इनका महिलाओं का रोल, महिलाओं की जो एक रोल प्ले करें वो डिसीजन मेकिंग में, हाउस लेवल पे, घरेलू स्तर पे भी, सामाजिक स्तर पे भी और पॉलिटिकल स्तर पे भी। पॉलिटिकल, सेकंड है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इंक्लूडेड द वुमेन रिप्रेजेंटेशन ऑन इलेक्टेड बॉडीज, महिलाओं का भी संसद में स्थान दिया गया है। सोशल एम्पावरमेंट, सोशल एम्पावरमेंट इंक्लूड द इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, समानता का अधिकार, हेल्थ केयर फॉर वुमेन, और समाज में महिलाओं के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए, उनके लिए भी नीतियां बनाई जाएं। अप्रोचेस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, वेलफेयर, कितने प्रकार की पहुंच अप्रोचेस हैं? वेलफेयर अप्रोच, वुमेन आर बेनिफिशियरी बट नॉट एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द डेवलपमेंट, बहुत सारी सुविधाएं ऐसी होती हैं जो महिलाओं को मिलती हैं, लेकिन जिनको वास्तव में जरूरत होती है उन महिलाओं तक वो सुविधाएं नहीं पहुंच पाती है। एफिशिएंसी अप्रोच, द अप्रोच कंसीडर द वुमेन एसेंशियली नॉट as a beneficiary of intervention but as a major resources development. If development is more efficient, it must include the participation of the woman. Importance, why we need to the woman empowerment. Here, women empowerment helps improving the standard life of women in rural and cities areas, preventing the crime against women, reducing the domestic violence, bringing lot of social and economic gain, solving societal issue like poverty, unemployment and birth control. अगर महिला सशक्त होगी, महिला लिटरेट होगी तो हम सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। महिलाओं को स्वरोजगार मिलेगा, बर्थ कंट्रोल होगा, अचीविंग द कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ इन एवरी सेक्टर ऑफ द सोसाइटी, समाज के कल्याण के लिए हर जगह महिलाओं की बहुत अहम भूमिका है। ऑल्सो इट कैन हेल्प इन नेशन बिल्डिंग प्रोसेस बाय ज्वाइनिंग द डिफेंस। आज के जमाने में मैक्सिमम लेडीज सब डिफेंस भी ज्वाइन कर रही हैं, सोशल सर्विस भी कर रही हैं, पायलट भी हैं, अंतरिक्ष में भी जा रही हैं। तो वुमेन एंड कॉर्पोरेट, हर जगह महिलाओं की एक अहम भूमिका है। वुमेन एम्पावरमेंट हेल्प्स द वुमेन प्रमोटिंग एजुकेशन which lead to employ a large number of population. It is actually a social development as a whole. वुमेन एम्पावरमेंट प्रिंसिपल, नाउ यहाँ मैं आपको वुमेन एम्पावरमेंट के सिद्धांत बताना चाहूंगी कि क्यों आवश्यकता है। एस्टेब्लिश द हाई लेवल कॉर्पोरेट लीडरशिप फॉर जेंडर इक्वेलिटी, ट्रीट ऑल वुमेन एंड मेन एट अ वर्क, एक ही जहां हम काम करते हैं वहां महिला और पुरुष की समान भूमिका होनी चाहिए। एंश्योर द हेल्थ, सेफ्टी, वेल बीइंग ऑफ ऑल वुमेन एंड मैन वर्कर, जहां भी ऑफिस में, समाज में महिलाओं की जो, वहां पुरुष और महिला को समानता का अधिकार मिले। प्रमोट द एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर वुमेन, इम्प्लीमेंट एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट, स्व एंटरप्रेन्योरशिप, है ना, महिलाएं अगर सशक्त होंगी तो वो अपने साथ एक को नहीं 10-100 लोगों को शिक्षित करेंगी। सप्लाई चेन एंड मार्केटिंग प्रैक्टिस, मार्केटिंग में भी आजकल महिलाओं की अहम भूमिका है। प्रमोट द इक्वालिटी थ्रू कम्युनिटी
initiative and advocacy. Measure and publicly report on progress to achieve the gender equality. Leadership promote the gender equality. Affirm high level support and direct top level policy for gender equality and human rights. Establish the company wide goals and target for gender equality and include the progress as a factor in managers perform the review. बहुत सारी कंपनीज में ऐसा होता है, या पहले ऐसा होता था कि जो प्लांट वगैरह हैं वहाँ महिलाएं रात की ड्यूटी नहीं कर सकती, लेकिन आज के समय में महिला और पुरुष दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। जितना महिलाएं वर्क करती हैं पुरुष से कहीं ज्यादा महिलाएं अपने आप को प्रूव करती हैं। एंगेज इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर इन द डेवलपमेंट ऑफ कंपनी पॉलिसी। आजकल जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनमें भी महिलाओं का स्थान होता है। द पॉलिसीज आर जेंडर सेंसिटिव, आइडेंटिफाइंग फैक्टर। अगर कहीं पहले जेंडर सेंसिटिविटी नहीं थी, जेंडर इक्वालिटी नहीं था, बट आज के समाज में महिला और पुरुष को एक समान ही हम देखते हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटी, इंक्लूजन एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। पे इक्वल, हम ये भी नहीं हमारे समाज में कि महिलाओं को कम पैसा मिलेगा और पुरुष को ज्यादा मिलेगा, ऐसा नहीं है। पे इक्वल रिम्यूनरेशन इंक्लूडिंग बेनिफिट्स फॉर वर्क ऑफ इक्वल values and strive a pay living wage to all women and men. All things are equal to women and men. Ensure the workplace policy and practice are free from gender based discrimination. जेंडर के, महिलाओं में लिंग भेद के आधार पे उनको भेद नहीं किया जाता है। हेल्थ, सेफ्टी एंड फ्रीडम फ्रॉम वायलेंस। अकॉर्डिंग टू वुमेन एम्पावरमेंट प्रोवाइड सेफ वर्किंग कंडीशन। आज महिलाएं जहां वर्क कर रही हैं वो एनवायरनमेंट उनके लिए सुटेबल हो, प्रोटेक्शन हो फ्रॉम एक्सपोजर टू हैजार्डस मटेरियल एंड डिस्क्लोज द पोटेंशियल रिस्क एंड इंक्लूडिंग टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मतलब जिससे कि वो समाज के लिए और कार्य कर सकें। एस्टेब्लिश अ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। ऐसा नहीं है कि महिला हो तो उनको प्रताड़ित किया जाए, है ना। वर्क प्लेस पे भी वायलेंस ना हो, उनके साथ कोई बदतमीजी ना करे। इस टाइप की सारी चीजों को रोक लगाने के लिए ही वुमेन एम्पावरमेंट जरूरी है। स्ट्राइव टू अवर हेल्थ इंश्योरेंस। जो इंश्योरेंस कंपनी में सबको मिलता है वो महिलाओं को भी मिल रहा है, इंक्लूडिंग फॉर सर्वाइवर ऑफ डोमेस्टिक। और डोमेस्टिक वायलेंस भी गलत है। जो घरेलू हिंसा होती है, महिलाएं बहुत स्तर तक सहन करती हैं, लेकिन आज महिलाओं को यदि हम शिक्षित कर देंगे तो वो अपने आप को, अपनी रक्षा खुद कर सकती हैं। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इन्वेस्ट इन वर्कप्लेस पॉलिसी प्रोग्राम, द ओपन एवेन्यू फॉर एडवांसमेंट ऑफ वुमेन एट ऑल लेवल्स। आजकल हर समाज में, सामाजिक स्तर पे, कॉलेज लेवल पे, विद्यालयों में महिलाओं को बताया जाता है कि क्या आपके लिए अच्छा है और क्या बुरा है, और उनको एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग देके उनको एनकरेज किया जाता है कि वो अपने नॉन ट्रेडिशनल जॉब के फील्ड से बाहर आए। एंश्योर द इक्वल एक्सेस टू ऑल कंपनी सपोर्टेड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। टाइम पे उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए, जैसे महिला बाल विकास है। महिला बाल विकास में महिलाओं के विकास के लिए ही कार्य किया जाता है। उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, उनको IT की ट्रेनिंग दी जाती है, कंप्यूटर सिखाया जाता है, जिससे कि वो उनको बहुत सारी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल नेटवर्किंग एंड मेंटरिंग में। Opportunity to promote the business case of women empowerment and positive impact of inclusion for the men as well as women. So इस प्रकार से हमारा देश में बहुत सारी नीतियां, बहुत सारे नियम बनाए गए हैं जो महिला सशक्तिकरण को सपोर्ट करते हैं। डेवलपमेंट, सप्लाई चेन एंड मार्केटिंग प्रैक्टिस, कम्युनिटी लीडरशिप एंड एंगेजमेंट। सामाजिक स्तर पे महिलाओं को सशक्त करना ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पुराने समय में महिलाओं का कोई रोल नहीं होता था। वो घर में रहती थी और बच्चों को देखना, भाल करना, उनको पोसना, घर के काम करना, यही उनके लिए था। बट आज के समाज में महिलाएं इतनी सशक्त हो गई हैं कि वो देश में पुरुष से कंधा मिलाकर चल सकती हैं। वुमेन एम्पावरमेंट एज अ टूल, एक ये टूल है वुमेन एम्पावरमेंट, फोकसिंग ऑन हाउ टू ब्रिंग द प्राइवेट सेक्टर कैन प्ले इनटू अ प्रमोटिंग द जेंडर इक्वलिटी। किस प्रकार से हमारे जो देश में, हमारे एजुकेशन सेक्टर में भी और हर जगह वुमेन जेंडर इक्वलिटी और वुमेन एम्पावरमेंट पे मतलब एक सब्जेक्ट ही
डाल दिया गया है कि हर महिला को सशक्त बनाना है। देम इनटू अकाउंट इन डेवलपिंग द रिवाइजिंग पब्लिक पॉलिसी, जेंडर इक्वेलिटी, जितने भी हमारे नियम बने थे सब में जेंडर इक्वेलिटी को इम्पोर्टेंस दी गई है, जो वुमेन एम्पावरमेंट एंड कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी महिलाएं अच्छे से निभा सकें। ये कंसीडर द कॉर्पोरेट कमिटमेंट, डिसीजन अबाउट विच बिजनेस टू पार्टनर। आज महिलाएं बहुत बड़े से बड़ा बिजनेस संभाल रही हैं और अपने साथ साथ हजारों लोगों को रोजगार प्रदान कर रही हैं। हमारे भारत में नेशनल पॉलिसी भी बनी है जो 2001 में महिला सशक्तिकरण के लिए बनाई गई थी। इसका जो प्रिंसिपल था वो जेंडर इक्वेलिटी इज एनरिच्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट प्रीएमेबल फंडामेंटल राइट्स। यह हमारा महिलाओं का मूलभूत अधिकार है। फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली ग्रांट इक्वलिटी वुमेन बट ऑल्सो एम्पावर द स्टेट। सिर्फ महिलाओं के सशक्तिकरण ही हमारे लिए आवश्यक नहीं, बिकॉज महिलाएं सशक्त होंगी तो हमारा राज्य, हमारा देश भी उन्नति करेगा। फ्रेमवर्क ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिसी, our laws, development policies, plan, program have a aim to women advancement in different spheres. So from the 5th year plan 1974 to 78 onward has been a mark. This is the women empowerment year. Shift in the approach to women issues, welfare to development in recent years, the empowerment of women has been recognized as the central issues in determining the status of women. The National Commission for Women was set up by Act on Parliament में 1990 में ये एक एक्ट बना जिसमें safeguard right and legal entitlement of women. The 73rd and 74th amendment to the Constitution of India have provided the reservation of seats in the local bodies of panchayat and municipalities for the women, laying a strong foundation for their participation in decision making at the local levels. So, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए समाज में बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है? महिलाओं का सशक्तिकरण, एम्पावरिंग वुमेन इज एसेंशियल टू हेल्थ एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ फैमिलीज। अगर महिला सशक्त होगी, शिक्षित होगी तो वो अपने परिवार की स्वास्थ्य का, उनके सोशल डेवलपमेंट का ध्यान, अपनी कम्युनिटी का, अपने समाज का, अपने देश का रख सकती है और अपने देश की उन्नति के लिए ही प्रयास कर सकती है। When women are living safe, fulfilled the productive life, they can reach their full potential. महिलाएं अपनी क्षमता से ज्यादा अपने वर्क प्लेस पे काम करती हैं और अपने आप को प्रूव करती हैं, जिससे कि एक अच्छे समाज की स्थापना होती है। सिग्निफिकेंस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट क्यों जरूरी है, भारत में इसकी क्या महत्व है? वुमेन एम्पावरमेंट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस टू इक्विपिंग द वुमेन विद द नॉलेज। कैसे हम महिला सशक्तिकरण कर सकते हैं? उनको ज्ञान के द्वारा, उनके स्किल की ट्रेनिंग, रिसोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, इन्फॉर्म डिसीजन, पार्टिसिपेशन इन सोशल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फीयर एंड चैलेंज द gender equalities. In the Indian context, it holds immense relevance due to the potential to drive progress and development. महिला सशक्तिकरण के द्वारा ही हम समाज की उन्नति कर सकते हैं। Women empowerment is not only the crucial for achieving gender equality. ये सिर्फ महिला और पुरुष का समाज में समानता का अधिकार, but it is also कैटलिस्ट, ये एक उत्प्रेरक का काम करेगा हमारे समाज, भारत की उन्नति के लिए। डेवलपमेंट एज इट अनलॉक द फुल पोटेंशियल ऑफ वुमेन, क्योंकि अगर हम महिलाओं को शिक्षित करेंगे, लिटरेट बनाएंगे, उनको सशक्तिकरण करेंगे, उनको स्किल उनमें डेवलपमेंट करेंगे, तो वो देश और समाज के लिए बराबर से ही काम कर सकते हैं। और महिला और पुरुष दोनों मिलके हमारे देश की उन्नति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। कुछ फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर डेट एनकरेज वुमेन एम्पावरमेंट। सबसे फर्स्ट है जो है एजुकेशन फैक्टर, सेकंड वन है लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क, थर्ड है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, फोर्थ है वुमेन लीडरशिप एंड रिप्रेजेंटेशन एंड अवेयरनेस एंड एजुकेशन ऑन वुमेन राइट। नाउ लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगी कि वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया
ये हमारे लिए बहुत ही कठिन टास्क है अचीव करना जेंडर इक्वलिटी और ड्राइविंग प्रोग्रेस के लिए, बट ग्रॉस रूट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक महिला हाउसिंग ट्रस्ट प्ले अ क्रूशियल रोल इन India. Their localized approach and community engagement contribute to significance to driving women empowerment and promoting the gender equality in India. ये जो संस्था है ये समाज में देश में महिला और पुरुष के समानता के लिए कार्य कर रही है और ये अपने कुछ प्रोग्राम्स चलाती है इनिशिएटिव और महिलाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए समूह छोटे छोटे समूह बना के ये ट्रेनिंग देते हैं और रिसोर्सेस अवेलेबल कराते हैं जिससे महिलाओं के सशक्तिकरण में उनको पूरा सहयोग मिल सके. ओके, थैंक यू सो मच लिसनिंग फॉर मी. थैंक यू.